Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Namaskar and welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today, friends, we shall also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But please do remember that we do not address company-specific queries. Well, you may call us on the numbers 23314444, 23717106 and 23421050. If you are calling us from outside Delhi, please do not forget to add 011 as a prefix to these numbers. Well, I am Lalima Aneja Dang and with me is my co-anchor in Hindi, Vishal Sharma. नमस्कार, मार्केट मंत्र में आप सभी का स्वागत। प्रतिदिन की तरह कार्यक्रम में ताजा आर्थिक समाचार आप तक लाएंगे। आज सोमवार है और कार्यक्रम में आपके सवाल भी लेंगे। आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े किसी भी विषय पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। यहां बता दें कि कार्यक्रम में किसी कंपनी विशेष या स्टॉक के बारे में जानकारी नहीं दी जाती है। टेलीफोन नंबर 23314444, 23717106 और 23421050 पर फोन करके आप सवाल पूछ सकते हैं। सवालों के जवाब देने और चर्चा के लिए आज स्टूडियो में आमंत्रित हैं बाजार विशेषज्ञ शिशिर सिन्हा। शिशिर जी नमस्कार, स्टूडियो में आपका स्वागत। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हेडलाइंस के साथ है लालिमा नेजा। Retail inflation eases to 6.77% for October. Wholesale price-based inflation for October eases to 19-month low of 8.39%. Domestic stocks indices witness modest losses. Sensex closes near 61,600. Nifty finishes below 18,350 and Brent crude price slips to trade around $95.50 per barrel. थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति अक्टूबर माह में कम होकर 19 महीने के निचले स्तर 8.39% पर आई। घरेलू शेयर बाजारों में मामूली नुकसान। सेंसेक्स 61,600 अंक के करीब हुआ बंद। निफ्टी 18,350 के स्तर से नीचे आया और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट कच्चे तेल की वायदा कीमतें $95.50 प्रति बैरल के आसपास। The Sensex and the Nifty today witnessed modest losses. Both stock indices declined amid mixed cues from global share markets. The Sensex closed near 61,600 points, while Nifty settled below 18,350 level. The Sensex fell 171 points or 0.28% to finish at 61,624. Nifty also slipped 21 points or 0.11% to end at 18,329. In the broader market at the BSE, the mid-cap index added 0.5%, while the small-cap index gained 0.25%. In the Sensex pack, 16 companies posted gains, while 14 logged losses. Kotak Bank was a top gainer as it added 1.3%, followed by IndusInd Bank, Tata Steel and Power Grid, which surged 1.1% each. On the other hand, Dr. Reddy's declined 3.9%, ITC fell 2.6%, Hindustan Unilever slipped 1.9% and SBI ended 1.4% down. In sectoral indices at the BSE, 6 sectors logged gains and 12 logged losses, while oil and gas index ended flat. Metal sector index climbed 1.5%, while realty gained 1.2%. IT sector added 0.8%. On the other side, FMCG index declined 1.3%. Power and capital goods, both sectors, slipped 0.7% each. Utilities index fell 0.5%. The overall breadth of the BSE trade was negative as shares of 1,948 companies gained while 1,668 fell. Shares of 153 companies remained unchanged.
मिले जुले वैश्विक संकेतों के बीच प्रमुख घरेलू शेयर बाजारों में आज मामूली नुकसान देखा गया। सेंसेक्स 61,600 अंक के करीब बंद हुआ, जबकि निफ्टी 18,350 के स्तर से नीचे आ गया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 0.28% गिरकर 171 अंक फिसलकर 61,624 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 21 अंक कम होकर 0.11% नीचे 18,329 पर आ गया। व्यापक बाजार में बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.5% और स्मॉल कैप इंडेक्स 0.25% की बढ़त के साथ बंद हुए। एंड नाउ वी आर जॉइंड बाय अक्षत कॉलिंग अस फ्रॉम फरीदाबाद। जी अक्षत, सवाल पूछिए। विशाल जी नमस्कार, शिशिर जी को भी नमस्कार, लालिमा जी आपको भी नमस्कार। नमस्कार। जी जी। मेरा सवाल था, मैंने 2019 में मेरे पास कुछ शेयर थे फिजिकल नाम पे, तो वो कार्वी पे कन्वर्ट करने के लिए डाले थे। तो उसके बाद कार्वी तो बंद हो गया है, तो ना मेरे पास फिजिकल शेयर्स बचे हैं। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? मेरी समझ में आपको इस समय में एनएसटीएल के, अगर आपका डीमैट अकाउंट एनएसटीएल के साथ है तो आप एनएसटीएल से संपर्क कर सकते हैं, या यदि आपका सीडीएसएल के साथ है तो उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। वहां से आपके लिए कोई समाधान निकल सकता है। देखिए, कार्बी के कई बिजनेसेस जो हैं वो बंद जरूर हुए हैं, लेकिन उसका विकल्प भी मौजूद है। तो मेरी सलाह होगी कि आप इन दोनों जो डिपॉजिटरीज हैं जो इनसे आप संपर्क करें, आपकी समस्या का समाधान संभव है। जी, and now we have Shiva ji online and let's see what he has to ask. जी शिवा जी, सवाल पूछेंगे अपना? हेलो। हाँ शिवा जी, सवाल पूछिए। कौन? नमस्ते मैडम। नमस्कार जी, सवाल पूछिए। सवाल ये है कि मार्केट मतलब रिटेलर के लिए आज कैसा रहेगा? जी हेलो। हाँ जी, बोलिए। ये जो मार्केट अभी ये चल रहा है, रिटेलर के जो अपना मार्केट नीचे ऊपर हो रहा है, तो उसका सोल्यूशन क्या रहेगा, इसके बारे में बात। देखिए, शेयर बाजार में जब बहुत तेज उतार चढ़ाव हो, और अभी जो सेंसेक्स का लेवल है जो आप देख रहे हैं 61,000 के ऊपर का लेवल है, तो एक आम सलाह यही दी जाती है कि आप म्यूचुअल फंड का रास्ता अपनाइए। जब बाजार में बहुत तेज उतार चढ़ाव हो, जोखिम से आप अपने आप को बचाएं। सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी मूल पूंजी को बचाएं, और मूल पूंजी को बचाना है तो बेहतर होगा कि अच्छे जो म्यूचुअल फंड्स हैं, जो चाहे वो इक्विटी में हो, चाहे डेट हो या कॉम्बिनेशन हो, इनके ऊपर आपको जाना चाहिए। जी, शंकर भोपाल से हैं अपने सवाल के साथ। हेलो। नमस्ते मार्केट मंत्रा टीम। जी नमस्ते। सर, मेरा सवाल है, अभी एक चाइना ने डेटा दिया कि उनका एक्सपोर्ट इंडिया के लिए 103 बिलियन डॉलर था, और हम लोगों का डेटा था कि हमने 90 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट किया। तो ये क्या, इसमें क्या ऐसी परिस्थिति में क्या बनता है? क्या हम लोगों के इंपोर्टर ने अंडर इनवॉइसिंग करी है, और इसकी क्या जांच होनी चाहिए कि इसमें रेवेन्यू लॉस हुआ है, तो इसमें गवर्नमेंट क्या कर सकती है? इसके बारे में कुछ पेपर में भी नहीं आया है, प्रिंट में आया था, पर बाकी कुछ आया नहीं है। बता सकते हैं इस बारे में? देखिए, ये कहना बहुत ही मुश्किल होता है जब तक जांच नहीं होती है, और अभी की जो परिस्थिति है, अंडर इनवॉइसिंग हो या ओवर इनवॉइसिंग हो, ये हम लोग जितना समझते हैं उतना आसान नहीं होता है, काफी जटिलताएं होती हैं। तो पहले जांच एजेंसियों को देखने दीजिए, और फिर जाकर के हम किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि अंडर इनवॉइसिंग हुई है या किसी भी तरीके से चोरी की गई है। Right, you can't have things black and white without any investigation or knowing more about it. Well, we just get back to Sensex. At 61,000, can we say that we are now back? The economy is back on track post-COVID, and all those clouds are over, and we are now robust. We are strong. We are going ahead. Of course, we are the 5th largest economy of the world. Does it give us a lot of confidence as an investor with Sensex touching 61,000 and above? See, confidence is there, but the real problem is that the ground is not so strong because of the another problem which we are facing because of Russia-Ukraine war. See, pandemic, now the impact of pandemic is not that much. The real impact is because of the Russia-Ukraine war. Right. And that is giving some kind of discomfort, not just to India, but all over the world. The good thing is that Indian rupee has not lost that much against various countries, various economies.
if we compare with Japan or if we compare with Euro. So that is giving some comfort. Another good thing is that now the inflation is coming down, and we are expected to have the inflation within the targeted inflation range of 2 to 6% by the end of this fiscal. That will give some comfort. Industrial production, if you take the month of September number, it is also showing very good growth. Core sector is also showing very good growth. The only problem is that the export is not picking up at that level, and that is going to impact the manufacturing sector, because the manufacturing sector is one sector which gives you good number of employment, and it also gives you some kind of value-added product. So manufacturing is not getting the acceleration because of the slowdown in other market. We are also seeing a mild recession in United States and some kind of recession in UK and Europe. So that is giving some kind of jittery to Indian economy. But still, I believe that if you compare with various other economies, apart from Saudi Arab has the highest growth rate at this moment. Even the IMF has said that. The second number is India, and the normal consensus is that we are expected to grow by 6.5% during fiscal year 2022-23. That's a very good number. जी, विनीत हुड्डा रोहतक से सवाल पूछना चाहते हैं। हेलो जी नमस्कार। जी नमस्कार, सवाल पूछिए विनीत जी। जी मैं ये जानना चाह रहा था कि फ्री मार्केट अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत करती है और कहाँ नुकसान पहुंचाती है। फ्री इकोनॉमी की बात कर, शेयर बाजार अर्थव्यवस्था को किस तरीके से मजबूती देते हैं या शेयर बाजार, मुझे फ्री शेयर, आपने क्या कहा मार्केट विनीत जी? Okay, I think we just lost the contact. He'll be listening to us on अच्छा, मैं दोनों के ऊपर देखता हूँ। फ्री इकोनॉमी, जो फ्री पॉलिसी को हम लोग बात करते हैं, देखिए 1991 से जब से हमने उदारीकरण को अपनाया है, उदारीकरण के दोनों पहलू होते हैं, कुछ अच्छा भी होता है, कुछ बुरा भी होता है। और केवल हम ये कहें कि सब कुछ अच्छा हुआ, ये भी गलत होगा, और ये भी कहना बिल्कुल गलत होगा कि बुरा ही हुआ है। तो एक मिली जुली चीजें हैं। और आज अगर हम 6.5% से विकास दर की बात कर रहे हैं, तो इसमें काफी हद तक हमारी नीतियां हैं, जिसको हम लोग एलपीजी के नाम से जानते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो ये हमारे पूरे अर्थव्यवस्था को कहीं न कहीं एक तरीके से एक दिशा भी दिखाता है, और विश्व अर्थव्यवस्था में जो प्रतिस्पर्धा चल रही होती है उसमें हमें टिके रहने में मदद करता है। अगर मैं इनके सवाल का दूसरा पहलू देखूं, जो शेयर बाजार की बात की, देखिए शेयर बाजार एक बैरोमीटर है। हम लोग हमेशा कहते हैं कि स्टॉक मार्केट इज द बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमी। तो शेयर बाजार अगर ऊपर नीचे होता है तो उसको लेकर के अर्थव्यवस्था का भी लोग आकलन लगा लेते हैं कि ऐसा हुआ है और इसकी वजह से अर्थव्यवस्था पर यह असर पड़ सकता है, इस वजह से यह असर पड़ सकता है। हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि सेक्टर कौन से हैं जो शेयर बाजार में ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। अभी के समय में हम लोग कहें तो एफएमसीजी सेक्टर पे थोड़ा सा असर देखने को मिल रहा है, और उसकी वजह है कि उसकी कीमतें बढ़ी हुई हैं, तो उनके ऊपर थोड़ा असर पड़ रहा है। लेकिन बाकी जो दूसरे सेक्टर्स हैं उसमें थोड़ा हमें फायदा दिखा है। आईटी सेक्टर की बात करें, वो थोड़ी सी कमजोरी की स्थिति में आ गया है, क्योंकि हमने अभी जस्ट चर्चा की थी कि यूएस और यूरोप और ब्रिटेन में किस तरीके से अर्थव्यवस्था की स्थिति है, उससे हमारा आईटी जो सर्विसेज है उसके ऊपर असर पड़ा है। तो शेयर बाजार के चाल को लेकर के आप ये जरूर कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में किस तरह की अभी के संकेत मिल रहे हैं। लॉन्ग टर्म को देखना है तो फिर आपको अलग अलग फंडामेंटल्स देखने होंगे, चाहे वो औद्योगिक विकास दर हो, चाहे वो महंगाई की दर हो, कोर सेक्टर का ग्रोथ रेट हो, ये सारी चीजें देखनी होंगी जो कि शेयर बाजार के इतर होता है। आपने सेक्टर वाइज बात की, मेटल सेक्टर में आज अच्छी खासी चमक देखी गई है और 1.5% आज उसमें तेजी दर्ज हुई है। किस तरीके से देखते हैं मेटल शेयरों की चाल आगे आने वाले वक्त में? देखिए, इसका मतलब साफ है कि अगर आपके देश में उत्पादन या विश्व भर में अगर उत्पादन की प्रक्रिया में तेजी आने के आसार बनते हैं तो उसमें एक अच्छा रॉ मटेरियल मेटल होता है। तो अब यहां पर एक उम्मीद ये बन रही है कि आने वाले समय में हम मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ी बेहतरी देखेंगे। अगर मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ी बेहतरी आती है तो उसका असर कुछ हद तक मेटल सेक्टर पर देखने को मिलता है, क्योंकि वो एक तरीके से उनके लिए रॉ मटेरियल का काम करता है। तो अब यहां पर उम्मीद यह है कि अगर अमेरिका में मंदी का असर बहुत ज्यादा नहीं होता है तो आपके ग्लोबल एक्सपोर्ट मार्केट में तेजी कुछ हद तक देखने को मिल सकती है। यूरोप हमको कहीं ना कहीं प्रभावित करता रहेगा, ब्रिटेन हमको अभी भी प्रभावित करेगा। भले ही वहां पे एक सरकार बन गई है, लेकिन अभी भी वहां पे राजनीतिक स्थिरता पूरी तरह से नहीं आ पाई है, तो उसका असर भी कुछ हद तक अर्थव्यवस्था पर देखने को मिलेगा। लेकिन बाकी विश्व बाजार में अगर स्थिति थोड़ी भी बेहतर बनती है तो उसका फायदा मैन्युफैक्चरिंग को मिलेगा और उससे मेटल सेक्टर को कहीं ना कहीं फायदा होता हुआ दिखेगा।
Right. We are now joined by Gurunath calling us from Thane. जी गुरुनाथ जी, he's a regular caller. आप सवाल पूछें. जी मैम नमस्कार. नमस्कार जी. शिशिर सर को भी नमस्कार. नमस्कार नमस्कार. सर अभी जो वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद हमारा जो सेंसेक्स है वो अभी मतलब 61,000 के पार कर गया है. सर जो मतलब आगे क्या मतलब इसमें कोई बड़ी गिरावट भी देखी जा सकती है या क्रैश भी हो सकता है मार्केट. तो सर हमें जो है अभी 6 महीने के लिए कौन से सेक्टर में 2-3 सेक्टर बताइए. अभी इसके आप डिस्कस तो किए हैं लेकिन फिर भी बताइए. थैंक यू सर. देखिए अमेरिका का जो एक ब्याज दर बढ़ाने का सिलसिला था, जिस आक्रामक तरीके से वो ब्याज दर बढ़ाने की बात थी, वो आक्रामकता अब नहीं दिख रही है. और यही वजह है कि आप देखेंगे कि जितने भी इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, यानी कि उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, उसमें विदेशी निवेशकों की खरीदारी बढ़ी है. और भारतीय अगर शेयर बाजार के सेंसेक्स की बात करें जो 61,600 के करीब में पहुंचा है, उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि विदेशी निवेशकों ने खरीदारी नए सिरे से शुरू की है. अब प्रश्न ये उठता है कि अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करूं 3 से 6 महीने की स्थिति कैसी रहेगी. अभी देखिए उतार चढ़ाव बना रहेगा और दिसंबर के महीने में अमूमन विदेशी निवेशक बिकवाली करते हैं. इससे हम लोग बोनस बुकिंग के नाम से जानते हैं. बोनस बुकिंग का मतलब ये होता है कि जब वो क्रिसमस की छुट्टी पे जाते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि कितना वो बोनस बना सके. और बोनस बनाने के लिए है कि बाजार में पहले वो निवेश करेंगे, भाव ऊपर जाएगा, बिकवाली करेंगे और उनका बोनस बनेगा. तो आप दिसंबर में थोड़ी सी बिकवाली होते हुए आप देखेंगे, शेयर बाजार में थोड़ी गिरावट होते हुए देखेंगे. लेकिन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विश्व अर्थव्यवस्था में भारतीय अर्थव्यवस्था एक जिसे कहते हैं ना ब्राइट स्पॉट के रूप में उभरा. ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी कह चुका है. दूसरी बात यह है कि फेडरल रिजर्व अब उतना आक्रामक नहीं है. तीसरी बात जो हमारे पक्ष में जा रही है कि ब्रिटेन में एक सरकार बन चुकी है. राजनीतिक अभी अस्थायित्व है, लेकिन थोड़ी सी अब जो परेशानी या चिंता थी वो थोड़ी कम हुई है. हाँ, यूरोप को लेकर के चिंता जरूर बनी हुई है और ये हमारे शेयर बाजार पर कुछ हद तक असर पड़ेगा. अब सवाल यह है कि किस क्षेत्र में आपको जाना चाहिए. मुझे लगता है कि बैंकिंग सेक्टर और खासतौर पर जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको दे रहे हैं. बैंकिंग सेक्टर में 2 वजह से मैं आपको सलाह दे सकता हूं. एक तो यह है कि एनपीए में गिरावट है और दूसरी बात अगर पहले 6 महीने के हम वित्तीय नतीजे देखें तो अच्छे आए हैं. अगर पॉलिसी रेट में बढ़ोतरी होती है तो उनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर भी असर पड़ेगा. तो एक तरफ उनके एनपीए में गिरावट होना और नेट इंटरेस्ट मार्जिन का बढ़ना, तो बैंकिंग सेक्टर एक अच्छा सेक्टर हो सकता है निवेश के लिहाज से. दूसरा जो कि हमेशा ऑल टाइम हिट डिफेंसिव सेक्टर्स होता है वो है एफएमसीजी. एफएमसीजी में आप देखेंगे कि कुछ समय के लिए गिरावट जरूर आएगी क्योंकि महंगाई का असर है, लेकिन वो मुझे लगता है कि एक डिफेंसिव सेक्टर है और वहां पे भी आपको जाना चाहिए. और तीसरा सेक्टर अगर मैं बात करूं तो आईटी सेक्टर में अगर वैल्यूएशन नीचे आ जाए, दाम नीचे आ जाए, तो निवेश करने के लिए एक रास्ता वहां पर खुल सकता है. When you talked of FMCG, I was just thinking we are a largely consumer-based economy considering our huge population which can be an asset at this time. Well, we are now joined by Dharamveer calling us from Delhi. जी धर्मवीर जी सवाल पूछें. जी हेलो 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 जी धर्मवीर जी सवाल पूछें. हाँ नमस्कार. नमस्कार जी. जी हाँ मैं ये पूछना चाहूंगा जैसे 6-8 महीने पहले बैंक में जो इंटरेस्ट रेट 5.10 था और आज की डेट में वो 7 पॉइंट करीब हो गया, 6.30 हो गया. तो ये बताइए कि अगर बैंक वो उस इंटरेस्ट रेट को ऑटोमेटिक क्या हमारे अकाउंट्स में 6.30 या 7% कर देगा, क्या हमें ये मिल जाएगा कि नहीं? क्या हमें बैंक में अपनी जो एफडी है उसको ब्रेक करके नई एफडी बनानी पड़ेगी, ऐसा हमें करना पड़ेगा? इसके बारे में कुछ सलाह देंगे क्योंकि करोड़ों लोगों की बैंकों में एफडी हैं जिनको जानकारी नहीं है. सुनेंगे तो उनको भी फायदा होगा. वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन. देखिए जमा एक ऐसी चीज है जो एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत चलता है. कॉन्ट्रैक्ट मतलब है कि जिस तारीख को आप जमा ले रहे हैं उस तारीख को ब्याज की दर क्या है. खासतौर पे अगर मैं फिक्स्ड डिपॉजिट की बात करूं, हाँ अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो जाहिर सी बात है कि अगर वो 2.75 से 2.8 हो जाता तो उसका आपको फायदा मिलेगा. या फिर आप अगर स्मॉल सेविंग में जाते हैं जहां क्वार्टरली रीसेट होता है तो एक क्वार्टर के लिए जो आपका ब्याज दर होगा दूसरे क्वार्टर के लिए ब्याज दर अलग हो सकता है. लेकिन बैंक में जो फिक्स्ड डिपॉजिट जब आप कराते हैं तो एक पर्टिकुलर तारीख को जो ब्याज की दर है उस दर पे आपको उसका फायदा उस
जमा की मैच्योरिटी यानी कि परिपक्वता पे मिलता है। तो अब ऐसे में आपके पास क्या विकल्प है? एक विकल्प ये होता है कि अगर आप वहां पर उसको ब्रेक करते हैं, तोड़वा लेते हैं, जिसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं, लेकिन ये ध्यान में रखिएगा कि उस पे आपका पीनल मार्जिन क्या है। अगर पीनल मार्जिन बहुत हाई है और उसके बाद आप वहां पे तुलना करें कि अगर हम ज्यादा वाले में पैसा लगाते हैं और पीनल मार्जिन देने के बाद वो फायदेमंद है तो फिर ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपको एक तय समय तक उसी दर पर बने रहना चाहिए। जब परिपक्व हो जाए फिर आप उसे एक नए सिरे से करवा सकते हैं। दिल्ली से रवि सवाल पूछना चाहते हैं। हेलो जी, रवि जी। हेलो। Okay, let's take a look at the inflation now. Well, retail inflation based on the Consumer Price Index CPI eases to a 3-month low of 6.77% in October this year. As per the Ministry of Statistics and Program Implementation data released today, retail inflation came down mainly ease in prices of food and beverages. The retail inflation for the month of September was 7.41%. In October, inflation in the food basket stood at 7.04 against 8.41% in the previous month. During the reported period, fuel and light witnessed 9.93% inflation against 10.39% in the preceding month. The government has mandated the central bank to maintain retail inflation at 4% with a margin of 2% on either side. Wholesale price-based inflation, WPI, for October eased to its lowest level since March 2021. Dropping below the double-digit mark for the first time since March of the previous year, it eased to 8.39% in October from 10.70% in September. According to the Commerce and Industry Ministry data released today, WPI inflation stood at 19-month low level amid ease in food articles segment, which slipped to 8.33% in October. Vegetable prices eased to 17.61% in the reported period against 39.66% in September. The fuel and power segment eased to 23.17% in October from 32.61% in the preceding month. The manufactured product segment also eased to 4.42% in October from 6.34% month ago. Well, more on that later. Right now we have Satish Chand calling us from Delhi. जी सतीश जी, सवाल पूछे। मेरा क्वेश्चन ये है कि इन्वेस्टर एजुकेशन फंड में जो शेयर चले जाते हैं उसको क्लेम करने का प्रोसीजर बहुत कम्बरसम है, नंबर एक, और क्या इजी प्रोसीजर हो सकता है इसमें? और नंबर दो, जब से बैंक मर्ज हुए हैं, these banks were merged, my dividend was coming regularly. Because of merger, dividend is not coming, so company has transferred the shares to the investor education fund. How to give this complaint or how to take back the shares in easiest way? Thank you. इसमें आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पे भी जाकर के कंप्लेन आप इन्वेस्टर ग्रीवांसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म में आप कर सकते हैं, सेबी के साथ भी कर सकते हैं, और यदि वो एक तय समय से उसका ज्यादा हो चुका है तो फिर थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन तय समय के भीतर है तो आपकी समस्या का समाधान संभव है। ठाणे से सुभाष फोन लाइन पर है। जी सुभाष जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत, सवाल पूछिए। हाँ जी, देखिए जी, पूछिए, सवाल पूछिए अपना सुभाष जी। हाँ, हेलो। जी हाँ, आपकी आवाज आ रही है, आप सवाल पूछिए। हाँ, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। सर, आई वांट टू आस्क दिस इन रूल्स रिलेटिंग टू ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स from deceased shareholders to his legal heirs, whether this production of succession certificate is compulsory, and whether that limit has been reduced to foreign activities. सुभाष जी, आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं थी, लेकिन कुछ प्रोसीजर के बारे में जानना चाह रहे हैं। मेरे ख्याल से इनका सवाल, अगर मैं जितना समझ पाया हूं, कि फिजिकल शेयर को डीमैट शेयर में तब्दील करने की बात कर रहे हैं, कि इनके पास शायद कुछ सर्टिफिकेट्स पड़े हुए हैं, उनको डीमैट में, जितनी इनकी आवाज में सुन पाया हूं, मुझे लगता है कि इसके लिए व्यवस्था आप अपने शेयर ब्रोकर के जरिए आप कर सकते हैं। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो पहला काम तो आपने करना है कि एक डीमैट अकाउंट खुलवाना होगा, और उसके बाद शेयर ब्रोकर के जरिए आप उसके कन्वर्जन के लिए आप कंसर्न्ड डिपॉजिटरी को और कंसर्न कंपनी को लिख सकते हैं। हालांकि कई बार इसमें डेडलाइन दी गई है, अब अभी भी नहीं हुआ है
तो बहुत ही सीमित रास्ते बचे हुए हैं इसमें। जी, बात हम अब महंगाई की करें तो महंगाई दोनों मोर्चों पर ही, चाहे थोक मूल्य सूचकांक हो या खुदरा महंगाई दर हो, दोनों में ही कमी दर्ज हुई है। क्या वजह मान रहे हैं आप इसके पीछे? देखिए, अगर थोक महंगाई दर की बात करें, जो कि एक नीतिगत ब्याज दर के ऊपर जो भी चर्चा होती है, उसमें अब थोक महंगाई दर की उतनी बड़ी भूमिका नहीं रह गई है। फिर भी अगर मैं थोक महंगाई दर की बात करूं तो जो 10.7% से 8.3 या 8.4% पे आई, एक अच्छी चीज है। 19 महीने का ये सबसे निचला स्तर है और इससे कुछ हद तक जो हमारे नीति जो निर्माता है उनको राहत मिलेगी और ये भी है संकेत कि आगे चल करके इसका असर आपके खुदरा महंगाई दर पर भी देखने को मिल सकता है। दूसरी तरफ अगर आप, सबसे महत्वपूर्ण है कि खुदरा महंगाई दर में कमी होना। खुदरा महंगाई दर जो 6.77% के करीब में है, ये अभी भी रिजर्व बैंक के कंफर्ट जोन यानी कि 6% से ऊपर बना हुआ है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि शायद ये बुरी खबर है, लेकिन हकीकत है कि जब अगले महीने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक होगी तो एक और नीतिगत ब्याज दर में आप बढ़ोतरी देख सकते हैं और इससे ये होगा कि आपके लिए जो हाउसिंग लोन है या जहां पे भी आपने फ्लोटिंग पे ले रखा है उस पर ब्याज दर में एक और बढ़ोतरी हो सकती है। राहत उसमें ये मिल सकती है कि जमा पर भी ब्याज दर में थोड़ी बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन यहां पर आम लोगों को बहुत ज्यादा राहत मिले, शायद ये कहना जल्दबाजी होगी। जी, रुक करते हैं एशियाई शेयर बाजारों का। एशियाई शेयर बाजारों में आज कारोबार मिला जुला रहा। हांगकांग के हैंग सेंग में 1.7% का उछाल आया और सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स में 1% की तेजी रही। वहीं दूसरी तरफ जापान का निकेई 1.1% टूट गया। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.3% की गिरावट में रहा और चीन का शांघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.1% के मामूली नुकसान के साथ बंद हुआ। यूरोपीय शेयर बाजारों में अंतर्दिवसीय कारोबार के दौरान जर्मनी का डेक्स और फ्रांस का कैक दोनों 0.2% की बढ़त दिखा रहे थे और लंदन का FTSE 100 0.4% ऊपर चल रहा था। Global crude oil price today fell more than 0.5%. In intraday trade, Brent crude was trading at $95.40 per barrel, while WTI crude prices were at $88.25 per barrel. और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर दिसंबर अनुबंध के सोने का वायदा मूल्य आज 120 रुपए बढ़कर 52,455 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था। दिसंबर अनुबंध वाली चांदी भी 315 रुपए की तेजी से 61,885 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर कारोबार कर रही थी। न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में अंतर्दिवसीय कारोबार के दौरान सोना $1,758.10 प्रति औंस और चांदी $21.60 प्रति औंस पर कारोबार कर रहे थे। And now we're joined by Preetam from Pune. Quickly, Preetam जी, जरा सवाल पूछे, वक्त कम है। नमस्ते सर, मेरा एक पॉलिसी यूनिट भी पॉलिसी अभी 22 नवंबर को मैच्योर होने वाला है, तो अभी मैं उसका मार्केट अच्छा है तो अभी ब्रेक कर दूं क्या? एक बार फिर से पूछ सकते हैं आवाज? अच्छा, मुझे लगता है अब वक्त हो गया है और हम अगली बार अगले प्रोग्राम में आप सवाल जरूर पूछिएगा. नेक्स्ट टाइम विल टेक यू फॉर श्योर. Shishir, when you talk about the oil prices, Brent crude at $95.40 per barrel, how do you view this? It's purely because of the demand from China. When the demand from China is low, then automatically it will have some impact on the crude prices. So we are seeing some kind of reduction. Even after the total production was cut down, we are seeing some kind of reduction in the global crude prices. It's good news for India because we all know that we import almost 85% of our crude requirement. Mm-hmm. So if the prices are coming down, the Indian basket will also come down, and that will certainly help our current account deficit. सोना शिशिर जी 50,000 51,000 के दायरे से बाहर निकलता दिखाई दे रहा है और 52,455 रुपए आज एमसीएक्स पर रहा है. बहुत संक्षेप में जानना चाहेंगे कि किधर जाते देख रहे हैं आप? सोने की कीमतें बढ़ती देखेंगे अब हम आगे भी? बहुत ज्यादा नहीं देखेंगे. थोड़ी बहुत इसमें उतार चढ़ाव बनी रहेगी. ये निर्भर करेगा कि अमेरिकी फेडरल की नीतियां इस पर क्या रहती है. जी शिशिर जी, आप कार्यक्रम में शामिल हुए और हमारे श्रोताओं के सवालों के इतने अच्छे से जवाब दिए, इसका आपका बहुत बहुत धन्यवाद. धन्यवाद. And friends, before we close, here's a reminder of the headlines. Retail inflation eases to 6.77% for October. Wholesale price-based inflation for October eases to 19-month low of 8.39%. Domestic stocks indices witness modest losses.
Sensex closes near 61,600. Nifty finishes below 18,350. And Brent crude price slips to trade around $95.50 per barrel. Well, that's all we have for you in this edition of Market Mantra. This is myself, Lalima Neja Dang, and Vishal Sharma signing off. Namaskar. Market Mantra.